Good morning, children. As you all know that in this week we are doing chapter number 6, that is multiples and factors. Actually factors and multiples. Okay. So we have completed factors, and in the last video we have studied about multiples and properties of multiples. Fine. So today we'll study even and odd numbers and common multiples. Fine. So let's start first even and odd numbers. Fine. So what are even numbers? Even numbers क्या होते हैं? A number which is multiple of 2 is an even number. Okay. Now tell me what are multiples? Multiples क्या होते हैं? Okay, one more time we will revise it. A multiple of a number is the product of the given number and some other counting number. A multiple of a number. Supposed to be, we have a number here that is 2. Okay. So the product of the given number, if we will multiply the number with the counting number, 2 multiplied by 1 is equal to 2. This is the first multiple of 2. And 2 multiplied by 2 is equal to 4. This is the second multiple of 2. 2 multiplied by 3 is equal to 6. This is the third multiple of 2. 2 multiplied by 4 is equal to 8. This is the fourth multiple of 2. Similarly, 2 multiplied by 5 is equal to 10. This is the fifth multiple of 2. It means when we multiply a number with the counting number, these are the counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so on, जो हम काउंट करते हैं एक के बाद एक, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं. ओके. When we multiply a number with the counting number, we get the multiple of the given number. ओके. जो प्रोडक्ट निकलता है काउंटिंग नंबर के साथ, अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है, दीज आर द मल्टीपल्स. ओके. सो यहाँ पर हमारे 2 के कितने मल्टीपल्स हमें मिल गए हैं? 5 मल्टीपल्स. 2, 4, 6, 8 and 10. These are the multiples. So we are talking about the even number. Even number, a number which is a multiple of 2 is an even number. नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है, मीन्स ये देखो ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 के मल्टीपल्स even नंबर होते हैं. ओके. इट मीन्स even numbers are exactly divisible by 2. Okay. So here we have multiples of 2. 2 के हमारे मल्टीपल्स हैं. इट मीन्स जो 2 की टेबल में आते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10. These are the multiple of 2. Okay, multiples of 2. Now we are talking about the even number. Even number, a number which is a multiple of 2. जो हमारे मल्टीपल 2 के होते हैं, these are known as the even numbers. Okay. Even numbers always end in one of the digits 0, 2, 4, 6 और 8. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपके इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा उनका एंड डिजिट मीन्स उनकी यूनिट प्लेस, वंस प्लेस हमेशा या तो 0 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है और 8 होती है. फिर यही रिवाइज आपका होता रहता है. फाइन. मीन्स आपको हमेशा अपने दिमाग में ये लेके चलना है कि इवन नंबर्स आप मल्टीपल्स ऑफ 2 तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. अगर आप 2 को मल्टीप्लाइड बाई 6 करोगे 12 मिलेगा, 7 8 9 10 11 200 1000. सबसे अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 के मल्टीपल्स मिलते रहेंगे. सो हाउ विल यू फाइंड द even numbers?
यू जस्ट चेक दी वंस प्लेस और यूनिट प्लेस. आप केवल डिजिट का वंस प्लेस चेक करोगे. ओके, इफ़ देयर इज़ 0, if there is 2, if there is 4, 6 or 8, that means it means that this number is even number. Okay, we have some numbers here, that is 2489, 104, 39,826, 19,920 and 1,241. So tell me what are the even numbers among these numbers. आप मुझे बताइए कि इनमें से आपके even numbers कौन कौन से हैं. Okay, so even numbers, as we know that even numbers are the multiples of 2. Now how will you find out what are the multiples of 2? इन नंबर्स में से मल्टीपल्स ऑफ 2 आपको कैसे पता चलेगा? जस्ट चेक आउट द यूनिट प्लेस. दिस इज द यूनिट प्लेस in the given number. This is the unit place, and I explained earlier that if the unit place is 0, 2, 4, 6 and 8, that means the number is even. Okay, so check the first number 2489, the unit place 9. So just look at these numbers. 9, this is not an even number. Next one, the unit place is 4, and here is also 4. This is an even number. The unit place is 6. This is even number. Unit place is 0, even number. Unit place is 1. It is not an even number. Fine, everyone? Okay. Now next is odd numbers. What are odd numbers? Here, a number which is not a multiple of 2 is an odd number. Simply, a number which is multiple of 2 is an even number. A number which is not a multiple of 2 is an odd number. Okay, here I have written the definition of odd number, that is a number which is not a multiple of 2 is an odd number. Okay, so simply जो 2 की टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, और जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर होते हैं. ओके, ऑड नंबर्स ऑलवेज एंड इन वन ऑफ द डिजिट्स 1, 3, 5, 7 or 9. As earlier I explained that if the digits unit place is multiple of 2, अगर आपका डिजिट का यूनिट प्लेस सपोज टू बी, वी हैव अ डिजिट हियर, सम डिजिट्स 2, 4, 8, 9. वी हैव सम नंबर्स हियर 2489, 5924, 3813, 9047. ओके, सो जस्ट चेक आउट द यूनिट प्लेस. आपको केवल यूनिट प्लेस चेक करना है. इफ़ इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, इट मीन्स इट इज़ एन इवन नंबर, एंड इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, इट मीन्स इट इज़ एन ऑड नंबर. सो 9 2 की टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स इट इज़ एन ऑड नंबर. 4 2 की टेबल में आते हैं, ये ऑड नंबर नहीं है. 3 2 की टेबल में नहीं आता, इट इज़ एन ऑड नंबर. 7 भी 2 की टेबल में नहीं आता, इट इज़ एन ऑल्सो ऑड नंबर. आप इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स में आप मल्टीपल्स फाइंड आउट करोगे तो आपका काफ़ी टाइम लगेगा. सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जस्ट लुक आउट द यूनिट प्लेस. आपको केवल वंस प्लेस चेक करना है. इफ़ देयर इज़ डिजिट which comes in the table of 2, if it is a multiple of 2, it means it is an even number. If it is not a multiple of 2, that means it is an odd number. Fine, everyone? Okay, students, just take out your rough notebook and write down these numbers. Write odd for odd numbers and even for even numbers. Quickly, just solve it out. जल्दी जल्दी से अपनी रफ नोटबुक निकालिए, और जो आपको ये नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स के आगे जो ऑड है उसमें ऑड लिखिए, एंड जो इवन है उसमें इवन नंबर लिखिए.
Okay, just check out the unit place of the number, of the given number, and then write what is that is even or odd. Okay, I'm giving you 1 minute. Just solve it fast. Okay, here are the answers. 2489 is an odd number because the unit place is 9. It is not a multiple of 2. This is multiple of 2, that's why it is an even number. This is also a multiple of 2, that is also an even number. Not a multiple of 2, that is an odd number. Multiple of 2, an even number. Not a multiple of 2, ऑड नंबर. आपने आगे का नंबर ये आपने पूरा चेक नहीं किया, आपने डिवाइड करके चेक नहीं किया, आपने बस यूनिट प्लेस चेक किया, जिससे आपने इजीली ये फाइंड आउट कर लिया. ओके, सबका आंसर सेम आया है ना? फाइन. लेट्स स्टार्ट द अनदर टॉपिक दैट इज़ कॉमन मल्टीपल्स. ओके, मल्टीपल्स तो अभी मैंने आपको समझाया था. व्हाट आर मल्टीपल्स? When we multiply a number with the counting number, we can get the multiples of the given number. So, common multiples, the numbers which are common among the multiples of 2 or more numbers are called common multiples. The numbers which are common among the multiples of 2 or more number. Suppose to be, we have a number here 6 and 8. Okay. Okay, we have two numbers here 6 and 8, and we have to find out the common multiples of the given number. हमको 6 and 8 के common multiples find out करने हैं. So common multiple means the numbers which are common among the multiples of 2 or more numbers. So first we will write down the multiples of 6. So मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, हमें 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं. 6 1 जार 6. सो मल्टीपल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, और 6 की जनरली हम टेबल लिखेंगे. ओके, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 are 36, and 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 8 are 48. ओके, 48 तक हम लिखेंगे बिकॉज 6 8 are, हमें 6 एंड 8 के बीच के फाइंड आउट करने हैं, तो हमने 6 8 जार. ओके, 6 10 तक हम लोग फाइंड, पहले हम 6 के 10 मल्टीपल्स लिख लेते हैं. 6 1 जार 6, 6 8 जार 48, 6 9 जार 54, एंड 6 10 जार 60. दीज आर दी 10 मल्टीपल्स ऑफ 6. ये हमारे 6 के मल्टीपल्स हैं. जनरली हमने 6 की टेबल लिखी है. नाउ विल राइट मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8. सो 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे हम, तो 8 की टेबल हम लिखेंगे. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. ओके, दीज आर दी 10 मल्टीपल्स ऑफ 8. ये हमने 8 के भी 10 मल्टीपल्स लिख लिए हैं, और हमने 6 के भी 10 मल्टीपल्स लिख लिए हैं. बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8. द जनरली वी आर फाइंडिंग आउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8. हमने सारे नहीं ले रहे हैं, हम केवल अभी इनमें से कुछ ही मल्टीपल्स लेंगे. नाउ चेक आउट द टेबल ऑफ 6 एंड 8. 6 एंड 8 की टेबल या मल्टीपल्स चेक करो, इनमें से कौन कौन से नंबर आपको सेम लग रहे हैं. 6 की टेबल में जो आपके 6 के जो मल्टीपल्स हैं उसमें चेक करो, और 8 के जो मल्टीपल्स हैं उसमें चेक करो कि कौन सा नंबर आपका सेम है. Okay, have you checked out? Okay, 6, here is 8 12, 16 18, no 24 24. Okay, 1 is 24, here is also 24. Now next 30 32, 36 40 42, 48 48 48. Next is 48.
54, 56, 60, 64। नाउ और भी हो सकते हैं जब हम काउंटिंग नंबर्स, वी कैनॉट फाइंड दी ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। हम अभी इसको कितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने 10 तक किया है, हम अभी 10 11 से भी कर सकते हैं, 6 को 12 से भी, 13, 14, 15, 16 सो ऑन। ऐसे ही हम 8 को भी 11, 12 से भी मल्टीपल्स हम इनके फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमने 10 तक ही मल्टीपल्स लिखे हैं, 6 के भी हमने 10 तक मल्टीपल्स लिखे हैं, 10 मल्टीपल्स लिखे हैं, एंड 8 के भी हमने 10 मल्टीपल्स लिखे हैं। तो इन दोनों में हमें जो कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं वो हैं हमारे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 are 24 and 48 and so on। ये डॉट डॉट मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहीं पर तक नहीं है हमारे, इससे भी आगे को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन मल्टीपल्स। अगर हम इसके 6 के और मल्टीपल्स लिखेंगे और 8 के हम और मल्टीपल्स लिखेंगे तो अभी हमें और मिल सकते हैं, बट हमने ओनली 10 मल्टीपल्स लिखे हैं दोनों नंबर के, तो हमें दोनों में कॉमन मिला है 24 and 48। In this way, we can easily get the common multiples of the given number. Okay? First, we'll write the all multiples of the given number. Then, we'll check out which numbers are same among the multiples of the given number। जो हम लोग पहले उसके पूरे मल्टीपल्स लिखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि उन दोनों में सिमिलर नंबर कौन कौन से आ रहे हैं आपके। ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर द एक्सरसाइज 6B which I have given you yesterday. This is book exercise. Okay, question number 1, 2 and 3 I have given you 3, 4 and 5 yesterday. I have given you. Just do these questions in your book and upload it on the Ursal. Now today in your worksheet I have given the question number 7, 8 and 9. Okay, you just write down the 5 common multiples of 5 and 7 less than 80. आप पहले 5 और 7 के आपको कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, आप फिर टेबल लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल के लिए आप गिवन नंबर की टेबल ही लिखेंगे जनरली। उसके बाद आप 80 से जो छोटे होंगे उनमें से वो आपको सिलेक्ट करके लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7 and 9। आपको 7 and 9 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। वेरी इजी। 7 का भी आपको 10 तक टेबल लिखना है, 7 10s are, एंड 9 का भी आपको पूरा टेबल लिखना है। नाउ सेलेक्ट, चेक आउट दी विच नंबर इज़ द कॉमन अमंग बोथ दी नंबर्स। दोनों के उसमें दोनों के मल्टीपल्स में आपका कौन सा सिमिलर नंबर आ रहा है, आपको वो सिलेक्ट करना है एज अ कॉमन मल्टीपल्स। ओके, नाउ मदर रैबिट हॉप्स 8 स्टेप एट अ टाइम while baby rabbit hops 4 steps at a time. Which steps will they both hop on? Draw on the number line to find out. This is maybe little bit tough for you. What you will do? You will just draw the number line and write down the multiples of 8. Okay? Okay. Question number 8 is asking mother rabbit hops 8 steps at a time. Look at here. ये आपको नंबर लाइन में ड्रॉ किया है। जो आपका मदर रैबिट है वो 8 स्टेप हॉप कर रहा है एक टाइम में। सो 8, फिर 8 स्टेप हॉप किया 16, देन 8 स्टेप और 24, देन 8 स्टेप 32, देन 8 स्टेप 40, सो ऑन। ओके, एंड बेबी रैबिट हॉप्स एट अ टाइम 4 स्टेप हॉप कर रहा है। 4, then 4 8, then 4 12, then 4 16, then 4 20, then 4 24. Okay, so which steps will they both hop on? अब आपको ये बताना है कि दोनों कौन से स्टेप में एक साथ हॉप करेंगे, मतलब कौन से स्टेप में दोनों हॉप कर रहे हैं। तो हियर इज़ 4, हियर इज़ 8, हियर इज़ ऑल्सो 8, अनदर इज़ 16, 16,
another is 24, 24, another is 32, 32, then 40, 40. It means that multiples of 8. जो भी आपका मदर रैबिट और बेबी रैबिट हॉप कर रहे हैं वो आपके दोनों सिमिलर आपको मल्टीपल्स मिल जा रहे हैं, दोनों में आपको कॉमन मल्टीपल्स मिल जा रहे हैं. आप कॉमन मल्टीपल्स सिलेक्ट करेंगे दोनों के और सिंपली यू कैन से दैट मल्टीपल्स ऑफ 8 और नंबर लाइन में भी आप इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज़ योर होमवर्क बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी think that it is tough question, so I have explained it here. मैंने इसे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसे अच्छे से समझेंगे और अपनी नोटबुक में करेंगे सॉल्व. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस which I have given in the worksheet, just read and write carefully. आपको अच्छी सी हैंड राइटिंग में अपनी मैथ्स की नोटबुक में सॉल्व करना है. ओके. See you in the next maths tutorial class. Bye bye. Have a nice day.